कैन यू हेलो हियर मी? रिदम, कैसे हैं आप? हेलो। बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ। कैसे सब सही चल रहा है? हाँ सर, अभी मेरा कल सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था तो बस उससे अच्छा। फ्री हुआ हूँ बस अब। अच्छा, आप इस हाँ। बार सीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे? हाँ। ओके ओके ओके। तो ये स्ट्रेटेजी सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग 102 ऑल इंडिया रैंक इन यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन, एक्चुअली रैंक 103। यस। 103 यस। 103। ओके रिदम, लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू स्ट्रेटेजी सेशन। एंड इसमें आपका जो भी आपकी स्ट्रेटेजी रही है, अप्रोच जो रही है, आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है। जी। सबसे पहले आप बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए, अपना स्कूलिंग और जो बैकग्राउंड कैसा रहा था आपका, कैसे स्टूडेंट थे आप कॉलेज में, स्कूल में? Okay. Sir, I've done my schooling from Jaipur, Rajasthan, where I've completed my secondary as well as higher secondary education. And I was a average student. I would not say a poor student, but not exceedingly well. Like I scored around 90% in my 10th, but there were a lot of people who were above me in my 10th. हम्म, For my 12th also, I was not the school topper or, not amongst the toppers also. I was somewhere in the middle, but not too low either. I had 93.6% in 12th, which was like not the best in my school. My school had also 99% toppers. So in my school, I wasn't made to feel that I was a topper, at least. So that was that. And in the college, I after my 12th, I took the CLAT examination. So I'm a lawyer by background. I did my BA LLB honors. So I ओके took CLAT All India examination again for the entrance of national law universities, and I was fortunate enough to score a good rank. I got a 652 rank in CLAT, and ओके I got admitted to Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, for that score. So from that, I did my BA LLB honors. In college also, I my academic record isn't the best. I'm again an average student, good pointer of 8.3 in college. But I did a lot of other activities, like for example, debating competitions, moot competitions, and other allied activities of law schools that happens. So that is where I come from. That is my background. ओके। तो आपने कब सोचा कि यूपीएससी का एग्जाम भी देना चाहिए, सीएससी का देना चाहिए एंड सीएपीएफ का भी देना चाहिए? Um, sir, mera last semester of my college, that is, since law is a 5 years degree, so last year of college or last semester of college, I had a choice whether I want to sit for the placement, that is, go for the corporate law firm's job, which is majorly taken by people, or choose the path of judiciary to ओके prepare for the judiciary exam, or come towards the civil services. I had a few seniors who had taken the exam, and one of them had succeeded even, and others were preparing for it at that time. So I was, looking forward to CSE because and CAPF also, because my mother is a government servant, and I've ओके grown up in amongst government servants and amongst bureaucrats, etc. So that I have a little bit of background. I knew what the work is like, the challenges that the work gives, and a lot of other stuff, the perks, etc., which always entice you to become a civil servant or a public servant like them. ओके। तो सीएससी में आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं अब तक रिदम? Sir, I've given two attempts. This was my second attempt, which I've given interview for right now. I'm waiting for the results for this. And ठीक in है। the first attempt, I was not able to clear my prelims. So this is my first mains and first interview again in the second attempt. ओके। सीएपीएफ के लिए क्या अप्रोच थी आपकी? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? कैसे आप अप्रोच करते थे? कैसे सीएससी के साथ आप उसको मैनेज करके चले कि मुझे टीयर 1, टीयर 2, रिटन ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव दोनों निकालना है, फिर इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी किया? एक बार आप डिटेल्ड अप्रोच अपनी सीएपीएफ के लिए स्पेसिफिकली बता दीजिए। सर, CAPF एग्जाम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वाइल प्रिपेयरिंग फॉर CSE समझ आया. I did not know about this exam at all before ओके I started preparing for civil services exam. So since it is conducted by UPSC, तो मुझे लगा कि if I'm giving civil services exam, it will be an added advantage
if I'm giving the CAPF exam also, because it helps you somewhere to good know the questions and then answer them accordingly. And also, most advantageous part about CAPF is that it's a Group A level officer job, and secondly, it Hmm. also gives you the chance because I eventually wanted to go into the civil services exam. So अगर interview मुझे एक बार face करने का experience रहेगा, तो it would have been better for me to go into the actual interview of civil services also, I thought, because the same people take it. The board members are the same. The procedure is similar. The questions can get varied, but the procedure is more or less the similar one here also. So anybody who's preparing for that civil services, they can complementarily take it as part of CAPF. That's what I did, at least in my thing. Now, Okay. with respect to the strategy, uh, uh, for example, I went through a lot of YouTube videos and the notification first of all with respect to CAPF. Ki, what is this exam like? What is the structure of the exam? So I got to know that it has only majorly three stages. That is, one is the written and the objective part. That is the phase one. Second is the physical part and medical examination, and third is the actual interview, and then you get the selection if you are qualified. So, with respect to the phase one, I focus majorly on my civil services preparation only. I did not do anything extra for it, except for the fact that since paper two here, paper one is majorly overlapping the civil services syllabus. So there is nothing new that you have to do. It is just that you need to go through the PYQs of that particular paper and then see for yourself as to what kind of questions will come. So I did that for the paper one, but paper two, since it's a new paper altogether, so Hmm. you need to first of all be very good over the command of your language, because it is entirely in English first of all. So you have to know the basics of report writing, for example, or pressy writing, or these terms, the questions that are part of the syllabus as whole. So आपको पहले वो देखना चाहिए, and secondly you also have to go through, I at least did it through YouTube videos of toppers. There is a lot of good content available on Okay. online with respect to toppers of CAPF exam who have explained their strategy, their way of attempting the examination, etc. I actually benefited immensely out of it, especially with topper Mr. Himanshu Vats, who was a topper in my previous batch. Like I got selected the previous batch. Himanshu Vats sir was the topper, so he has a YouTube channel, and it really helped me to go through the paper two strategy at least, so that I was able to hone my skills then. And with respect to the interview, again, the process is similar. That you need to study and you need to know yourself very much. It is an internal preparation rather than an external preparation, I thought so. So once you know yourself, your strengths, your weaknesses, and the subject areas that you've mentioned in the DAF, then I think interview will be a good ball game for you if you are confident enough and just you know the knowledge about the subjects that you have written in the DAF. So that is what with respect to the interview is. Yeah. तो पेपर वन के लिए आपने कितने टेस्ट लगाए भी थे कि अपने सेल्फ स्टडी पे आपने किया? सर जैसे मैंने बताया, मैंने पेपर वन के लिए टेस्ट नहीं लगाए थे, अलग से कोई टू बी टेस्ट फ्रैंक। आपने आई नहीं लगाया? अलग से और टैंक, हाँ, पेपर नहीं टू के लगाया लिए? था मैंने। सिर्फ पीवाईक्यूज लगाए थे। पेपर टू के लिए भी मैंने कोई अलग से टेस्ट नहीं लगाया था। ओह! मैंने सिर्फ उनका स्ट्रक्चर देख लिया था एक बार, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं अपनी लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंट हूँ। तो मुझे लगा था कि मैं लिख लूंगा इफ आई नो द स्ट्रक्चर ऑफ कि ओके। हाउ टू राइट इट एटलीस्ट, तो कि डायरेक्टली आप रिपोर्ट एग्ज़ाम राइटिंग में क्या में चीज़ है। यू अटेम्प्टेड द टेस्ट यस, डायरेक्टली इन द एग्ज़ामिनेशन आप यस, यस, ओके, यस, ओके, यस। ओके। ठीक है और इंटरव्यू के लिए आपने कितने मॉक इंटरव्यूज़ दिए और कैसा-कैसा आपके फीडबैक्स रहे थे? क्या इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ा अपनी पर्सनैलिटी में? यस सर। इंटरव्यू के लिए मैंने स्पेसिफिकली 3 मॉक्स दिए थे। वन ऑफ देम विथ बीइंग विथ व्यास आईएएस आल्सो। हुँ, तो मैंने मॉक दिया था, एंड मेरे को जो फीडबैक मिले काफ़ी जेन्युइन और इंटरनल रिफ्लेक्शन बेस्ड थे फ्रॉम ऑल द 3 इंटरव्यूज मॉक्स। इट वाज़ मोर लाइक कि यू नो थिंग्स, यू जस्ट हैव टू स्ट्रक्चर इट इन अ बेटर मैनर, एंड ओके। सिंस आई एम अ फास्ट स्पीकर, that is a general observation with a lot of people. I am a very fast speaker, so you need to slow down and make the other person understand it rather than just running it with your thought. हुँ, So दो तरह के मेरे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ये थे। बाकी ऑब्वियसली कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट होता ही हर बार, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होता है। इफ आई एम लैगिंग ऑन दैट, सो दे गिव मी फीडबैक ऑन दैट आल्सो। ओके।
एकदम आप उन कुछ बिलियन स्टूडेंट्स में से हैं जो बहुत कम टेस्ट लगा के और पीवाईक्यूज वगैरह स्ट्रक्चर देख के आपने एग्जाम निकाला है। कुछ ऐसे इंसाइटफुल टिप्स जो आपको लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को पता हो, अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर दे आर प्रैक्टिसिंग इन द टेस्ट, कुछ भी इंसाइटफुल टिप्स जो आपने टॉपर्स की वीडियोस देख के लिए अपने एक्सपीरियंस में लिए, जो आप कहना चाहते हैं रिगार्डिंग पेपर टू, क्योंकि पेपर वन में सब कर रहे हैं, पेपर टू सीएपीएफ का बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, उसके लिए कुछ इंसाइटफुल टिप्स जो आप देना चाहें जो और उनके लिए काफी काम आए। सर इन माय ओपिनियन मेरा जो एंटायर फोकस था पेपर टू में, इन इवन इफ इन गोइंग इनसाइड द एग्जाम रूम, कि मैं पेपर कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक। आई डिड नॉट वांट टू गिव द एग्जामिनर द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि इस बच्चे ने पेपर कंप्लीट नहीं किया है तो मेरे को अपॉर्चुनिटी है इसके 5 या 10 नंबर काटने की। तो मैं उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता था कि मैंने पेपर कंप्लीट किया, यू आर फोर्स टू रीड इट नाउ। You will mark on the quality of the paper, I understand it, but at least you will not find a blank page in it कि हाँ इस पर लिखा ही नहीं तो इसमें जीरो ही दे देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो ठीक है, तो मैं उसको वो अपॉर्चुनिटी, एग्जामिनर को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाह रहा था। तो फर्स्ट टिप आई विल give to everybody is please try and complete your paper. Do not leave your paper. If you have completed your paper, you're already 1 foot inside the qualification or the selection race here. ठीक है, तो अगर आपने कंप्लीट कर दिया पेपर, प्लीज मेक श्योर दैट आप कंप्लीट कर रहे हैं सबसे पहले तो। सेकेंडली, विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, ऑलवेज बी वेरी डायरेक्ट विथ योर आर्ग्यूमेंट्स। आप ये नहीं कि आप 3-4 लाइन में बिल्डअप कर रहे हैं और 5वीं लाइन में आपका आर्ग्यूमेंट आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एसेज या जो पेपर टू में ऐसे आता है। तो आप बी डायरेक्ट, बिकॉज वहां पे इतना आपको समय ही नहीं मिल रहा है सोचने का। पहली बात तो कि आप इतना सोच सकें कि 4 लाइन में बिल्डअप करें और 5वीं लाइन में अपना आर्ग्यूमेंट देखें। तो आप एग्जैक्टली। फर्स्ट लाइन से ही टू द पॉइंट बुल्स आई हिट करते हुए, एग्जाम्पल को साथ में रखते हुए, एआरई अप्रोच कहते हैं हम इसको, मैं अपने लॉ स्कूल ओके। में पढ़ता था और मुझे काफी काम आई। असर्शन, रीजनिंग एंड एग्जाम्पल, एआरई ओके। अप्रोच होती है ये। तो आप एआरई में क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आज कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। उसके बाद मैंने रीजनिंग दी कि कैसे बन सकता है, कि हम अलग अलग डोमेन, इकोनॉमी, पॉलिटी, लीगल एक्सेट्रा में रिफॉर्म्स करेंगे। और फिर एग्जाम्पल दिए कि मैंने अभी तक इतने रिफॉर्म कर दिए हैं और हम आगे भी देख रहे हैं इस तरह के रिफॉर्म करते हुए। तो इस तरह हम्म। से मैं अपना असर्शन, रीजनिंग और एग्जाम्पल का मॉडल जो होता है वो फॉलो करता था हर एक अपने पेपर में, हर एक आंसर में, जिससे कि उसको मोर इफेक्टिव बना पाऊं। तो इस तरह की कुछ चीजें जो मैं करता था। ओके। डेली आपका टाइम टेबल कैसा रहता था, शेड्यूल क्या रहता था, किस तरीके से आप पूरा दिन को मैनेज करते थे? सर विथ रिस्पेक्ट टू सीएपीएफ, क्योंकि एग्जाम अगस्त में होता है, मेजरली ओवरऑल, अगस्त फर्स्ट वीक में। हाँ। ओवरऑल क्या आपका अ, कोई? जी, तो मेरा फोकस रहता था सर, आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन कि मैं न्यूज़पेपर पढूं रोज। तो ठीक मैं है। न्यूज़पेपर स्किप नहीं करता था, चाहे कोई भी दिन हो। और मेरे को एन्जॉय करता हूँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ना इन जनरल, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है उस चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है हर जगह, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, बट जनरल अवेयरनेस रहना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं न्यूज़पेपर एक तो पढ़ता ही था। अब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, बट ईदर ऑफ द टू आई वुड रीड एवरी डे। एंड विथ अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अपनी जो सीएससी की प्रिपरेशन है उसके साथ अलाइन करा था, क्योंकि सीएपीएफ को, तो मैं अपने सब्जेक्ट्स जो हैं, जब सीएपीएफ एग्जाम क्लोज आता था तो मैं अपने सब्जेक्ट्स को है वो स्विच कर लेता था, जो कि जो पेपर वन में पूछे जाने वाले थे उन सब्जेक्ट से। जैसे एथिक्स फॉर एग्जांपल नहीं पूछा जाएगा दोनों ही पेपर में, तो मैं एथिक्स को थोड़े दिन के लिए साइड रख देता था, सीएससी का जो सब्जेक्ट है, और सीएपीएफ के सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे ज्यादा फोकस करता था। तो रेस्ट ऑफ द डे of for that, and majorly for the newspaper, beginning 2 hours of the day, 2 hours or 2.5 hours, whatever time it took me to read that. ओके। और एकदम एक ओपिनियन स्टूडेंट्स के बीच में ये भी रहता है कि पेपर टू को हैंडल करने के लिए या फिर सीएससी मेंस की अगर हम बात करें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए या बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे। कुछ लोग फिक्शन, नॉन फिक्शन नॉवेल्स की ओर चले जाते हैं। तो किस हद तक कितना पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर जैसे आपने कहा एक अच्छा पॉइंट है, न्यूज़पेपर के अलावा कुछ वेबसाइट्स या कुछ और चीज़ें जो आप चाहते हैं कि भई अगर ये पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश और आपकी नॉलेज ठीक हो जाएगी। सर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हम पढ़ सकते हैं कि मेंस, और जैसे फॉर एग्जांपल सीएपीएफ में भी इंग्लिश और बाकी लैंग्वेज कमांड आ सकती है, तो आई थिंक इट इज अ गुड वे टू स्टार्ट विथ सर्टेन यूट्यूब वीडियोस आल्सो। फॉर ओके। एग्जांपल एक फर्स्ट पोस्ट नाम से न्यूज चैनल है, उनका एक वैंटेज नाम से प्रोग्राम आता है, मिस ओके। पलकी शर्मा उपाध्याय,
takes that, and she has a very brilliant command over international affairs and the language of that international affairs program that she has. तो अगर किसी को जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटिंग न्यूज में इंटरेस्ट है और उन्हीं को ही, क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि ओवरलैप आता है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सीएपीएफ सिक्योरिटी डायलॉग्स एक्सेट्रा, तो शी हैज अ वेरी गुड कमांड ओवर इट. तो अगर आप उनको सुनेंगे, उनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसको, तो आई थिंक इंग्लिश इंप्रूव या फिर इन जनरल आपका नॉलेज बेस इंप्रूव हो जाएगा इन रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल अफेयर्स. ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग वीडियोज है. जैसे मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ डॉक्यूमेंट सीरीज देखने का, तो मैं हिस्ट्री टीवी 18 या फिर नेट जियो की डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करता हूँ. तो उससे भी मेरे को काफी हेल्प मिलती है टू नो अबाउट सर्टेन फील्ड्स ऑफ एरिया जो मेरे को नहीं पता थे पहले. तो इस तरह से मैं मतलब आई एम अ बिलीवर इन एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज. तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ तो मैं कोई वीडियो देख के अपना आपको एंटरटेन नहीं करूंगा. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू दैट, बट ऑल्सो कीप इट रेलेवेंट टू योर सब्जेक्ट. अगर वो हो सके तो बहुत अच्छा है वो चीज. फिर एकदम अभी यूपीएससी सीएससी का फॉर्म अभी फिलिंग चल रही है और उसमें देखा जा रहा है कि डेफ वगैरह में वो ओवरऑल मतलब हॉबीज वगैरह अचीवमेंट्स वगैरह पूछ रहे हैं. तो आपने जब अपना डेफ भरा था तो आपको क्या चीज़ें, आपको क्या लगता है किस तरीके से हॉबीज और अचीवमेंट्स और ये सारे सेक्शन फिल करने चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है. 5-5 हॉबीज लिख रहे हैं और 10-10 तरीके के अचीवमेंट लिख रहे हैं. क्वांटिटी क्वालिटी कैसे जाना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर्म फिलिंग के दौरान? सर आपने जैसे बोल ही दिया, आई थिंक इसमें तो देर इज नो डाउट दैट क्वालिटी विल ट्रम्प ओवर क्वांटिटी एनी डे. क्योंकि आप समझ रहे हैं वहां पे आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कितने ब्रिलियंट फॉर्म फिलर हो, आप कितने ब्रिलियंट पर्सनालिटी हो वो दिखनी चाहिए वहां पे इन द इंटरव्यू रूम, बिकॉज डैफ इज ऑल दैट दे हैव गॉट व्हाइल एनालाइजिंग योर पर्सनालिटी. एग्जैक्टली. तो जो चेयरमैन या पैनल मेंबर्स होते हैं उन सबको सिर्फ डैफ ही दिया जाता है आपका, उनके अलावा उनके पास कोई आपके रिलेटिंग डेटा नहीं है उनके पास. तो वो आपको उसी पे जज कर रहे हैं. तो ये ना हो कि आप तो भर दें कि मैं मतलब बहुत ही ब्रिलियंट इंसान हूं और आपकी पर्सनैलिटी से वो उभर के ना आए. तो वो जो पर्सनैलिटी एक्सपेक्टेशन मिसमैच है वो बहुत ही गलत तरीके से जज किया जाता है फिर अगर आप नहीं कर पाते हैं उसको फुलफिल या तो. और विद रिस्पेक्ट टू आपने बोला कि किस तरह से फॉर्म भरना चाहिए, सर मेरे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट पॉलिसी है ऑनेस्टी की. अगर आपने कोई चीज करी है तो प्लीज पुट इट. अगर आपने नहीं करी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नॉट पुट इट, क्योंकि आप अगर प्रिपेयर नहीं कर पाओगे उस चीज को तो देर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग इट. अगर मान एग्जैक्टली. लो जी मैं बैडमिंटन खेलता हूं और मैंने लिखा है तो मुझे पता होगा क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस चीज का खेलने का. चाहे हाँ हर चीज नहीं पता होगी तो उसमें मैं मना भी कर सकता हूँ, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट मेजरली चीजें पता होंगी. बट अगर मैंने चीज करी ही नहीं है और मैं लिख दूंगा तो उसमें मेजरली चांसेस है कि आपको नहीं पता होगी फिर चीजें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको या नहीं करा है तो कभी. तो जो आपने पढ़ा है या करा है प्लीज पुट दैट ओनली एंड नॉट पुट एनीथिंग विच इज फेक. सो प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट, मतलब ये कॉशन वर्ड है कि आप अगर आप वो करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप 30% तो खुद को ही उनके सामने एक तरह से मतलब शहीद कर देंगे वहां पे उस रूम में. सो रिदम, इतने एग्जाम्स आपने दिए, अच्छे अच्छे रैंक्स आप लेके आए, ओवरऑल जो आपकी सक्सेस रही है इस जर्नी में, आप किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? फैमिली फ्रेंड्स में से जिसको भी आप क्रेडिट देना चाहते हैं? सर फर्स्टली तो मैं फैमिली को ही दूंगा. मेरी मदर हैं, मैं उनको बिकॉज शी इज इनटू एजुकेशन सेक्टर. वो टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में. तो उन्होंने मुझे शुरू से ही पढ़ने की तरफ मोटिवेट करना हो जी. या फिर एक आउटलुक टुवर्ड्स करियर दिया हमेशा कि आपको कुछ ना कुछ बड़ा बन के और मतलब एक देश सेवा में काम करना है हमेशा. तो मैं ट्राई करता हूँ उसी की तरफ जाने का. सेकेंडली सर मतलब मैं मतलब सब लोग बोलते हैं कि आपको फ्रेंड्स फैमिली बहुत लोगों ने हेल्प की, बट आई थिंक मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प की मेरे न्यूज़पेपर पढ़ने की एबिलिटी ने. मेरे को लगता है कि मैं न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ता और शुरू से मेरा वो जो जिज्ञासा जो जगी न्यूज़पेपर में, तो मैं सारे न्यूज़पेपर्स को जरूर थैंक करना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर एडिटर्स को. और क्योंकि मेरे काफी फेवरेट एडिटर्स वैसे अगर बन गई, एक अच्छा. रिलेशनशिप बन जाती है ना रीडर की एक बिल्कुल. न्यूज़पेपर एडिटर से या न्यूज़पेपर से इन जनरल. तो मेरी वो रिलेशनशिप है. मैं आज भी अगर मान लो फ्री भी हूं तो मुझे एक क्रेविंग है कि मैं पढूं न्यूज़पेपर जाके. तो वो एक तरह का रिलेशनशिप, स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जो मुझे बहुत हेल्प किया विद रिस्पेक्ट टू एनलार्जनिंग माय ब्रेन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर इशू या फिर अच्छा ओपिनियन देना हो किसी रिस्पेक्ट में. तो न्यूज़पेपर को मैं जरूर थैंक करना चाहूंगा, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदू हो, क्योंकि दो ही मैं ज्यादातर पढ़ता था. कभी हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा बट बहुत रेयरली. तो न्यूज़पेपर्स को जरूर थैंक करना चाहूंगा इस जर्नी में. रिदम, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टडी सेशन. डेफिनेटली इट वाज वेरी इंसाइटफुल और काफी एस्पिरेंट्स को इससे थैंक यू हेल्प सो मच हुई. सर. ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल फॉर योर इंटरव्यू रिजल्ट्स.
हम आशा करते हैं जल्दी थैंक आप यू। सीएससी में भी एक अच्छी रैंक लेके आए, फिर हम सीएससी के लिए भी अलग से एक टॉपर सेशन निकालें। ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच।